Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we will study the class 8th social science history. Okay? आज हम स्टडी करेंगे हमारे 8th स्टैंडर्ड के सोशल साइंस सब्जेक्ट के हिस्ट्री पोर्शन की. ओके, सो लेट्स ओपन द चैप्टर नंबर 2. ओके, लेट्स ओपन द चैप्टर नंबर 2. Dear students, this is the chapter number 2, page number 10. Okay, the title of this chapter is Establishment of Rule of East India Company in India. East India Company का इंडिया में establishment. Okay, और establishment के टाइम में उन्होंने कौन कौन से रूल्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से स्टेबल हुई, हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, सो नाउ पे योर अटेंशन एंड पुट योर फिंगर एंड कंसंट्रेशन. लुक एट. In the last lesson, you came to know that Vasco da Gama in 1498 discovered a sea route to India. लास्ट लेसन में हमने पढ़ा कि वास्को डी गामा ने 1498 में सी रूट एक डिस्कवर किया था जो इंडिया तक आता था. राइट. लेटर ऑन ट्रेडर्स ऑफ पुर्तगाल केम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड्स एंड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटीज़. उसके बाद क्या हुआ कि पुर्तगाल से बहुत सारे ट्रेडर्स, ठीक है, पुर्तगाल के जो बहुत सारे ट्रेडर्स थे वो भारत में आए बिजनेस के पर्पस से, ट्रेडिंग पर्पस से, एंड इम्पोर्टेंटली टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटीज़, अपने धर्म के प्रचार के लिए. टू इंक्रीज देयर इफेक्ट दे टूक द किंग ऑफ बीजापुर इन देयर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्कर्ड गोवा एज देयर कैपिटल. ध्यान रखेंगे, जो पुर्तगालीज आए थे उन्होंने सबसे पहले बीजापुर के जो राजा थे उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उन्होंने गोवा को अपना एक क्षेत्र बना लिया, गोवा पे एक अधिकार बनाया और गोवा को अपना कैपिटल बना लिया. अंडरस्टैंड. अपना वो ट्रेडिंग कैपिटल, उन्होंने पुर्तगालीज ने अपना ट्रेडिंग कैपिटल कैसे बना लिया, गोवा को. आफ्टर कैप्चरिंग द सी कोस्ट एरिया दे स्टार्टेड इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन those ships coming from foreign lands and those who did not give it were drowned in the sea. तो जब उन्होंने गोवा को अपना कैपिटल बना लिया तो वो गोवा कहाँ है, अपना सी कोस्टल एरिया के अंतर्गत आता है. गोवा इज़ अ सी कोस्टल एरिया. सो सी कोस्टल एरिया में उन्होंने क्या किया, विदेश से जितने भी आने वाले जहाज हुआ करते थे, शिप्स हुआ करते थे, उनसे उन्होंने टैक्स लेना शुरू किया. राइट. और जो टैक्स नहीं दिया करते थे, जो नहीं देते थे टैक्स, उन्हें क्या कर देते थे, समुद्र में ही डुबा दिया करते थे. अंडरस्टैंड. सो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़, ठीक है, शुरू में पुर्तगालीज के द्वारा की गई थी इंडिया में. राइट. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इंडिया इन 1765. 1765 में इंडिया का जो एरिया आप देख रहे हैं, अलग अलग डायनेस्टीज़ के माध्यम से, अलग अलग डायनेस्टीज़ के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था. तो आप यहाँ पर सिम्बल्स में आप देखेंगे द ऑल डॉटेड पॉइंट्स in India. Look at this side, many of the area has been captured with these dotted points, and this dotted points means the Mughal dynasty. This was the area of the Mughal dynasty, as well as some of the portions of this area was also ruled out by the Mughal dynasties. Right. Look at this one, this line, straight line. So the straight lines are appearing in the mid of the India as well as in the all Maharashtrian sides. Did you understand? So this line shows the dynasty of Marathas. This is the dynasty of Marathas. Understand? Look at the straight line. The straight line basically appears in this portion. Look at here. Okay. So this is known as the Francis border. Okay. Francis border area. This was the Francis border area. Look at the spot without any marks. These are the spots without any marks, and this is the area of Afghan, and this is also the area of Afghan. Look at this side. Understand? The cross pattern, this is the very small sign. Okay, this is the cross, this is the very small sign, and this was the war area. Look at here, in this place, this was the war area. Okay, as well as look at this area of Bihar, Buxar. Okay, this was also the war area. So wherever the war has taken place has been denoted as a cut marks and as war area. Understand? And look at this point. This is the important place. In many of the places in India's map, as you can see, there are various kind of spots, and these all spots were the very important in all point of views for operating dynasty, okay, for the tradings and etc. Understand? So in this
दिस इज द सिनेरियो ऑफ इंडिया ऑफ 1765. अंडरस्टैंड. आप अपनी बुक से इसे और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं. ओके, देख सकते हैं. सो लेट्स कम टू द टेक्स्ट. Okay dear, on that time, on those days, many traders from different nations of Europe came to India for trades. They bought things like spices, cloth and indigo at cheap rate from India and used to sell at a high cost in European market. Okay, उस समय क्या हुआ था जब वास्को डी गामा ने एक सी जो रास्ता था, सी रूट था, उसके ईजाद करने के बाद मैनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज केम टू इंडिया फॉर द ट्रेडिंग पर्पस एंड दे यूज टू जस्ट टेक द स्पाइस, क्लॉथ्स एंड इंडिगो फ्रॉम द इंडिया इन अ वेरी चीप रेट एंड यूज टू सेल इन अ वेरी हाई इन कॉस्टली रेट इन यूरोपियन कंट्रीज. सो मोस्टली यूरोपियंस वर नॉन वेजिटेरियन, so demand for the spice was very high those days, and so for the preserving food stuff spices were needed which were not grown over there. आपको पता होगा कि यूरोपियंस लोग ज़्यादातर वहाँ क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस होते हैं. तो नॉन वेजिटेरियंस होने की वजह से उन्हें स्पाइस की बहुत सारी डिमांड होने लगी, और चूँकि वहाँ पर स्पाइस उगाया नहीं जाता था इसलिए वहाँ की डिमांड और बढ़ती गई. स्पाइसेस वर ग्रोन इन एशियन कॉन्टिनेंटल कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, मलाया एंड श्रीलंका एट्सेट्रा. सिर्फ एशियन कॉन्टिनेंट्स की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ ही स्पाइसेस यहाँ क्या होते हैं, पैदा किए जाते हैं. ठीक है, उनकी खेती होती है. Sea routes trade was cheaper and conveniential for they could buy them cheap and sell them at a profitable rate. और सी रोड बहुत ही उनके लिए आसान हुआ करता था और कॉन्वीनियंट भी हुआ करता था चीज़ों को खरीदना, लेकर जाना, प्रॉफिटेबल रेट पे बेचना. यूरोपियंस गेव सिल्वर एंड गोल्ड टू इंडिया इन बार्टर. बार्टर इट वॉज अ ट्रेंड. ठीक है, एक प्रकार की उस समय की पद्धति हुआ करती थी बार्टर. बार्टर मीन्स जैसे हम कोई चीज़ सामान खरीद रहे हैं तो उस सामान के खरीदने के बदले में हम अभी क्या देते हैं, उसे पैसे देते हैं. ठीक, कोई सामान अगर हमने खरीदा तो उसके बदले में हम पैसे देते हैं. उस समय क्या होता था, अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसके बदले में हम पैसे ना देकर कोई चीज़ उन्हें देते थे. राइट. तो अगर ऐसा हम करते हैं, सामान के बदले हम पैसा ना देकर कोई सामान ही अगर उन्हें वापस करें तो इस पद्धति को क्या बोलते हैं, बार्टर. याद रखेंगे, बार्टर. तो यूरोपियन जो लोग हुआ करते थे उस टाइम में सिल्वर और गोल्ड देते थे हमारे इंडिया के लोगों को. ठीक है, उनसे स्पाइस, क्लॉथ और इंडिगो लेने के बदले. Consumptions of spice was in much demand in Europe, so for a long time they cannot be exchanged for gold and silver. बहुत ज़्यादा वहाँ स्पाइस की डिमांड होने लगी, इसलिए यूरोपियंस जो आते थे उन्होंने बहुत समय तक गोल्ड और सिल्वर को नहीं बदला. ठीक है, स्पाइस खरीदने के बदले में वो गोल्ड और सिल्वर लगातार देते रहे. ड्यू टू दिस रीज़न दे वांटेड टू अर्न फ्रॉम द कॉलोनीज एंड ऑल्सो वांटेड टू स्टार्ट देयर बिजनेस देयर. अब इस वजह से वो क्या सोचने लगे कि चलो अब यहाँ पर हम अपना कॉलोनी स्टार्ट कर लेते हैं, हम अपना यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं. फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस दे वांटेड टू इस्टेब्लिश देयर रूल एंड वांटेड टू अर्न एंड गेट रिबेट फ्रॉम टैक्सेस. और इसी उद्देश्य से, अपने बिजनेस के उद्देश्य से वो क्या चाहते थे कि वो यहाँ पर रूल आउट कर जाएं और यहाँ पर जो टैक्सेस लगते थे इंडिया में उससे थोड़ा सा उन्हें रिलैक्सेशन मिल जाए, उन्हें रिबेट मिल जाए. कंट्रीज़ लाइक हॉलैंड, जहाँ से डच आए हुए थे, डच कंट्री लाइक हॉलैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड ऑल्सो वांटेड टू इस्टेब्लिश देयर बिजनेस एज दे सॉ द पुर्तगीज अर्नड ग्रेट प्रॉफिट. कॉन्फ्लिक्ट्स वर वेरी यूजुअल ड्यू टू बिजनेस राइवलरी. अंडरस्टैंड. तो उस समय पुर्तगालीज़ को देखकर हॉलैंड के, डच के लोग, फ्रांस के लोग और इंग्लैंड के लोगों ने भी अपनी इच्छा जाहिर की इंडिया से बिजनेस करने की, इंडिया से ट्रेड करने की. और यही कारण था कि उनके बीच में बहुत सारे क्या होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब वाद विवाद. अंडरस्टैंड. ओके, तो बिजनेस राइवलरीज. ठीक है, व्यापार के कारण जो उनकी दुश्मनी हुई उसके कारण उनके बीच में आपस में क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगा. ठीक है, यहाँ पर एक डिस्कशन है. आर्या एक स्टूडेंट के रूप में है, वो अपने टीचर से पूछती हैं, डिड ऑल यूरोपियन कंट्रीज केम टू ओनली वन पार्ट ऑफ इंडिया फॉर द ट्रेड सर. क्या जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो भारत के केवल किसी एक हिस्से में बस बिजनेस करने के लिए आए थे क्या, उन्होंने अपने सर से पूछा. राइट. तो आंसर क्या दिया टीचर ने. आंसर, टीचर, यू करेक्ट. At that time, Surat was main center of trade.
उस समय सूरत जो कि गुजरात में है, दिस इज द one place, one city of Gujarat state. Okay, so at that time the Surat was the main center of trades. Therefore Portuguese started their factory in Goa. ठीक है, मेन ट्रेड सूरत हुआ करता था। अब पुर्तगालीज ने अपना ट्रेड कहाँ से स्टार्ट किया? गोवा, दमन एंड दीव में। गोवा, दमन एंड दीव में। पौंडीचेरी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, पौंडीचेरी में ठीक है, पौंडीचेरी को इस्टेब्लिश किसने किया था? फ्रांसिस मार्टिन ने। दिस सिटी इज सिचुएटेड नियर मद्रास कोस्ट लाइन एरिया। पौंडीचेरी कहाँ स्थित है? मद्रास कोस्ट लाइन एरिया के। रिफ्लेक्शन ऑफ फ्रेंच कल्चर कुड बी सीन देयर टुडे ऑल्सो। आज भी पौंडीचेरी में आप वहाँ पर फ्रेंच कल्चर देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? पौंडीचेरी वॉज फ्रेंच कैपिटल। फ्रेंच जो आए हुए थे उन्होंने अपना कैपिटल कैसे बनाया? पौंडीचेरी को। एंड देयर ट्रेड्स इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम हियर एंड चंद्रनगर। और उन्होंने अपना चंद्रनगर में और पौंडीचेरी में 2 जगह में अपना बिजनेस कैपिटल स्टार्ट किया, इस्टेब्लिश किया। ट्रेडर्स फ्रॉम इंग्लैंड चूज बॉम्बे। जो ट्रेडर्स इंग्लैंड से आए हुए थे, जो ट्रेडर्स कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने बॉम्बे को चुना। मद्रास एंड कोलकाता एज देयर ट्रेडिंग कैपिटल। मुंबई को भी चुना उन्होंने, मद्रास को चुना और कोलकाता को उन्होंने ट्रेडिंग कैपिटल के रूप में चुना। फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश फैक्ट्रीज दे चूज सेंट फोर्ट जॉर्ज इन मद्रास। उन्होंने सेंट फोर्ट, ठीक है, जॉर्ज जो है उस मद्रास का जो प्लेस है उसे उन्होंने अपने इस्टेब्लिशमेंट के लिए ब्रिटिश फैक्ट्री के रूप में चुना। राइट, दस डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज एंड कंपनीज इन इंडिया। इस तरीके से डच लोगों ने, फ्रेंच ने और ब्रिटिश ने अपना जो कंपनी है, फैक्ट्रीज है, इंडिया में इस्टेब्लिश किया। राइट, Teachers said on the basis of study of the map of India point out the place where Europeans established their trading centers and guess why they did so. और इस तरीके से वो जो टीचर थे उन्होंने मैप की ओर अपने आप को पॉइंट आउट किया। ठीक है, और इस आधार पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो यूरोपियंस आए हुए थे उन्होंने ट्रेडिंग्स करते हुए किस तरीके से कौन कौन से एरिया को अपने बिजनेस के लिए सेलेक्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 3 यहाँ पर कॉलम बनाएंगे। एक में ब्रिटिश लिखेंगे, एक में आप फ्रेंच लिखेंगे, एक में आप डच लिखेंगे। ठीक है, फ्रेंच, डच एंड ब्रिटिश। डच ने कौन कौन से एरिया सेलेक्ट किए, फ्रेंच ने कौन कौन से एरिया सेलेक्ट किए और ब्रिटिश ने कौन कौन से एरिया सेलेक्ट किए, ये आप यहाँ पर इस पैराग्राफ के माध्यम से आप इतना नोट्स प्रिपेयर करेंगे। अंडरस्टैंड? लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्रिटिश फैक्ट्री। आप देख सकते हैं ब्रिटिश फैक्ट्री इस तरीके से स्टैब्लिश की गई थी। अंडरस्टैंड? लुक इट। So children, traders of Portugal and Holland were thrown out of business and political competition by the end of 17th century. Dear students, क्या हुआ था कि जो पुर्तगाल से लोग आए हुए थे और जो हॉलैंड से लोग आए हुए थे उनको उनके बिजनेस से और पॉलिटिकल कंपटीशन से 17th सेंचुरी के अंत तक उन्हें यहाँ से भगा दिया गया था। ठीक है, ओके, उनका क्योंकि ब्रिटिश, फ्रेंच और डच के बीच में खूब लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो उन लोगों को भगा दिया गया। फ्रेंच वर देयर ओनली राइवल्स एंड कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स वर यूजुअल। उस समय केवल फ्रेंच और ब्रिटिशर्स बस बचे थे और उनके बीच में लगातार झगड़े होते थे। ठीक है, उनके बीच में हमेशा वाद विवाद होता था। इन दिस पीरियड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वर नोन एज ड्वेलिंग हाउस और कोठीज़। उस समय जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज होती थी उनका नाम क्या हुआ करता था? ड्वेलिंग हाउस या कोठीज़। ये क्या होते थे? द कोठीज़ आर प्रोटेक्टेड एरिया वे गोडाउन्स, ऑफिसेज एंड वर्कर्स ऑफ द कंपनी यूज टू स्टे एंड ट्रॉप्स ऑफ सोल्जर्स वर ऑल्सो कैप्ट हियर। जो कोठीज़ हुआ करती थी वहाँ पर गोडाउन बनाया जाता था, ऑफिसेस बनाए जाते थे, कंपनी के वर्कर्स वहाँ रखे जाते थे और साथ ही साथ उनकी जो सैन्य टुकड़ियाँ होती थी उनको भी वहीं पर कोठीज़ में ही रखा जाता था। ठीक है, जिसे ड्वेलिंग हाउस या कोठीज़ कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कोठीज़ इंग्लिश के समय में, ब्रिटिश के समय में किसे कहते हैं, उसका क्या उपयोग था, तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, और कोठीज़ को हम क्या बोलते हैं? ड्वेलिंग हाउस। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स। Madras, which is situated in eastern coast of South India, was main trading center of British. मद्रास जो कि ईस्टर्न कोस्ट का,
ईस्टर्न कोस्ट का जो बहुत ही मेन पॉइंट हुआ करता था, ये ब्रिटिश के लिए क्या मेन ट्रेडिंग सेंटर था। पौंडीचेरी विच इज़ ऑल्सो वेरी नियर मद्रास वॉज ट्रेडिंग सेंटर ऑफ फ्रेंच। तो पौंडीचेरी फ्रेंच के लिए ट्रेडिंग सेंटर था, मद्रास ब्रिटिशर्स के लिए ट्रेडिंग सेंटर था। ठीक है, ओके। बोथ दी सेंटर्स वर अंडर द रूल ऑफ नवाब ऑफ कर्नाटका स्टेट। और ये दोनों ही सेंटर किसके अंडर में आया करते थे? नवाब ऑफ कर्नाटका स्टेट, कर्नाटक स्टेट के नवाब के अंतर्गत। एज बोथ द कंट्रीज वांटेड टू अर्न हाई प्रॉफिट थ्रू ट्रेडिंग। और दोनों ही कंट्रीज़, ठीक है, कौन कौन से? ब्रिटिश एंड फ्रेंच, ये दोनों ही हाई प्रॉफिट कमाना चाहते थे, राइट। ओके, तो दोनों जो कंट्रीज थी वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती थी, तो उन्होंने क्या किया? दे गॉट फ्रेंडली विद नवाब ऑफ कर्नाटका। वो जो नवाब थे कर्नाटक के, उनसे उन्होंने फ्रेंडली होने की कोशिश की। ओके, कॉन्फ्लिक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ नेक्स्ट सक्सीजर ऑफ द नवाब टूक प्लेस एट दिस टाइम। At this time, French and Britishers got the opportunity to join the Karnataka politics. Both French and British took the opposite sides in the conflicts. इस बीच में क्या हुआ कि नवाब के माध्यम से उस समय एक रूल्स इम्पोज किया गया। फ्रेंच एंड ब्रिटिश, इन दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल गई कर्नाटक के पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के लिए, राइट। और वहाँ पर हुआ क्या कि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में रहते हुए कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू किए। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट है यहाँ पर चुंगीकर क्या होता था? टैक्स विच हैज़ टू बी पेड बाय ट्रेडर्स टू द किंग ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑन ट्रांसपोर्टिंग ट्रेडिंग गुड्स। ठीक है, अलग अलग ट्रेडर्स के द्वारा, ठीक है, जितने भी ट्रेडर्स आते थे पर्टिकुलर स्टेट में, वहाँ का जो राजा हुआ करता था, उनको वो ट्रांसपोर्टिंग जो ट्रेडिंग गुड्स होता था उनके ट्रांसपोर्ट के बदले में टैक्स दिया करता था। ठीक है, वही टैक्स क्या होता था? चुंगीकर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे, और आगे in the further class we will discuss about the all upcoming points of the same lesson. So you can do one thing, you can read the lesson very properly, you can point out some important points, okay, and keep studying dear students, because this is very informative lecture for you all guys. It's a SST subject history portion. Okay, so stay at your home, keep learning, stay safe. Thank you.